Okay, let's start. So it's from FSC chapter 1 to 3. A free falling body has mass 10 kg, moving with initial speed of this and rebounds with speed of this. So we need to find the change in momentum. It's part of the PPSC mail test 2022. So change in momentum, del P is equal to mass into change in velocity. Considering 6 meter per second to be as final, so it's 8 meter per second here and 6 meter per second here. So 8 and 6. तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, एक को प्लस. सो बाय कन्वेंशन हम इसको प्लस ले लेते हैं और बाय इसको नेगेटिव ले लेते हैं. So change in velocity will be -6 into -8 -14 into 10 -140. So इसका आंसर जो बनता है वो -140 नैनो सेकेंड. It could go either side, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करें अगर none of these का ऑप्शन है तो. Okay, next. Move on to the second. A certain force gives an acceleration of 2 meter per second square. So we have acceleration here of 2 meter per second square to a body of mass 5 kilogram. The same force would give a 20 kilogram object an acceleration of. So we just need to apply Newton's second law. F is equal to ma. In first case हमें mass और acceleration दिया गया. So one can find के जो force लग रही है system पे, that is 10 Newton, 5 into 2, the first part of the question. अब उसी force के लिए हमने 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन मालूम करना है. सो A is equal to F/m. सो F है हमारे पास 10, the new mass is 20. So 1/2 or 10/20 basically is half. So its answer will be 0.5 meter per second square. Okay, change in momentum has the same dimension as that of. अभी हमने change in momentum का formula देखा. तो अगर हम recall करें Newton's second law in terms of momentum, so we know कि F is equal to rate of change of momentum के equal होता है del P over del T. So हमें इसकी dimension चाहिए. So what we can do कि हम इसे इधर लाके multiply कर दें. F basically it's an average force, and then we have change in time, and that is equal to change in momentum. So the dimension of change in momentum is equal to the dimension of force into time, and we know that force into time has a special significance in physics, and it is known as impulse. So the dimensions of impulse and momentum change are same. Okay, so there are two vectors given. So हमने यहाँ पे क्या करना है कि इन vectors के दरमियान angle निकालना है. So one is this vector A, whatever you like to say, then we have this vector as B. और इसके दरमियान अगर हमने एंगल निकालना है तो we know कि अगर जब भी एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के दरमियान तो हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड अ डॉट प्रोडक्ट. A डॉट B is equal to AB cos थीटा. सो इसको अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो हमें चाहिए ये cos थीटा. सो A डॉट B अगर हम करें I और K का J के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, सो दैट्स अंडरस्टूड के 0 आंसर आएगा, क्योंकि I डॉट I 1 होता है और I के साथ किसी का भी इनर प्रोडक्ट या डिफरेंस इनर प्रोडक्ट जो है आपको वो रिवर्स देगा. सो दैट इज 0. सो इनकी इसकी अहमियत खत्म हो जाती है जो भी मैग्नीट्यूड आएगी. द मेन थिंग इज cos थीटा 0 कब होता है. सो cos थीटा इज 0 at 90 degree. सो A will be the answer. So इसका कोई भी आपको
though it's look like unit vectors, but they are vectors having unit vector as their components. It's a magnitude. The reverse process of addition of vectors is called resolution of vector. Is not subtraction. Resolution of vector से मुराद है vector को resolve करना. Addition से मुराद है उन vector का result निकालना. For example, we can take an example कि ये vector का x component है और ये vector का y component है. इसको अगर हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं तो वी गेट अ रिजल्टेंट, यानी इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, हेड टू टेल रूल लगाएंगे, सो वी गेट दिस रिजल्टेंट. सो दिस रिजल्टेंट इज बेसिकली आल्सो द एडिशन बाय हेड टू टेल रूल. और अगर हम इसको रिवर्स देखें तो ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द मोस्ट सूटेबल आंसर हियर. ओके, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज एन पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि आपने क्लोजेस्ट देखना है. नल वेक्टर हो सकता है कि नहीं, यूनिट वेक्टर हो सकता है कि नहीं. सो जो रूल है वो यही है कि आप मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि यूनिट वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से हमें पता लगेगा. अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर. सो अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर होल अंडर रूट. सो इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है. दिस इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला, सैंडविच रूल one can say, or sorry, it's not sandwich, it's something else. Okay, so main ये formula है, trigonometric identity है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and 1 का under root 1 होता है. So this is a vector having a magnitude 1, so this has to be a unit vector. null vector की magnitude 0 हो जाती है. projectile moves with constant, ये हमने देखना है कि projectile किस velocity से, यानी कौन सी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द होल पाथ. सो वर्टिकल एक्सेलरेशन बेसिकली इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करते हैं. और अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी अगर हम रिकॉल करें, सो इट ऑलवेज आल्सो रिमेन कांस्टेंट. और अगर हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की, सो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है. सो इट्स आंसर कुड बी ए एंड सी. के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी, इफ वी कुड ड्रॉ इट, vx is equal to v fx, ये FSC की बुक में हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं. इट इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा. और दूसरी चीज पे अगर हम देखें एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन भी जो आपका है वो g है वर्टिकल, ए वाई इज इक्वल टू g और माइनस g बेस्ड ऑन वट एवर द कन्वेंशन यू आर यूजिंग. सो ये दोनों सेम रहेंगे. सो इट्स आंसर could be D, both A and C. Okay, let's move ahead. Just a minute. Okay, a force of 4 Newton act along y-axis is horizontal component B. तो क्योंकि force along y-axis लग रही है, तो उसका जो horizontal component है वो it has to be 0, which is none of these of course, यहाँ पे नहीं है. Okay, when two forces of equal magnitude are making an angle of 180 degree with each other, the magnitude of the resultant is. तो इसको लिए जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, I would like कि आप वही अप्लाई करें. The formula was r square is equal to, maybe r is equal to under root आ जाएगा. Then the first component magnitude square, we have discussed this formula in pre-test discussion. Then b square plus 2ab cos theta. This is the most general formula for resultant. Any two vectors of any magnitude making an any angle between 0 and 360 degree, you can simply use this formula to find this answer. So this is the power of this formula. So just cos 180 यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, so it will become -1. So it becomes a square plus b square minus 2ab. So ये फॉर्मूला हम सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं. अब उसने कहा है कि वो दोनों
बराबर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं। सो जस्ट आप इक्वल मैग्नीट्यूड इसमें इनपुट कर दें। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ए की मैग्नीट्यूड भी फॉर एग्जांपल एफ है, बी की मैग्नीट्यूड भी एफ है, यानी व्हाटएवर यू लाइक टू से इट। सो अगर एफ करेंगे तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विल बिकम 2f स्क्वायर, और ये भी 2f स्क्वायर हो जाएगा। सो 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सेम क्वांटिटी। सो द आंसर विल बी 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो और इसको अगर आप जस्ट विदाउट यानी याद रखना चाहें थ्योरी, सो इट्स जस्ट सिंपल लाइन कि एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं होगा। सो रिजल्टेंट विल बी 0। सो 180 डिग्री अपार्ट वेक्टर ऑफ एनी सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव और प्लस भी कर सकते हैं। सो जो भी आप इसे कहना चाहें, देयर कैन बी मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, द कंपोनेंट ऑफ अ यस, इफ समवन सेड एनीथिंग। इसमें और भी तरह के क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं कि जैसे अब आपने एंटी पैरेलल का वर्ड यूज किया तो हम सिंपल इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं सेम जी मैग्नीट्यूड की बिल्कुल, वजह से। एग्जैक्टली जनरल बाकी फॉर्मूले से स्टार्ट करने का क्वेश्चन मकसद यही था, जैसे बताना कि ये जनरल है। बाकी आप इसको कई तरह के डोमेन में लेके जा सकते हैं। एंटी पैरेलल सिंपल 0 है, बट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स दोनों की। फिर पैरेलल हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पैरेलल परपेंडिकुलर करके भी पूछ सकता है, तो इस तरह से हम सिंपली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी इसको बिल्कुल ये आर मैक्स और आर मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर जी मैक्स सर। जो है वो होता है सम ऑफ टू वेक्टर्स, जी और सर। वो होगा 0 डिग्री के लिए। आर मीन होता है a माइनस बी, जो होता जी है सर 180 वो डिग्री के लिए। 180 तो जी अगर जी। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो इसमें जस्ट पुट करें और आंसर है। लेकिन जनरल फॉर्मूले से इधर आने का मकसद ये था क्योंकि क्वेश्चन कोई भी जी एंगल सर। के आ सकता है ना, कोई भी मैग्नीट्यूड का आ सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन एज द केस हियर की इजीएस्ट वन है तो हम उसे सिंपली भी कर सकते हैं। ओके थैंक्स। ओके, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वॉट बल्ब इन 1 मिनट। सो इट्स अ डेली हाउस होल्ड क्वेश्चन के 60 वॉट का बल्ब अगर मैं यूज कर रहा हूँ और वो 1 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं बाहर जाके मीटर पे रीडिंग देखने की बजाय सिंपली प्रेडिक्ट कर लूँ कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। सो एनर्जी इज बेसिकली पीटी, दिस इज अ फॉर्मूला, सिंपल पावर डेफिनेशन, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क एनर्जी सेम होते हैं। सो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा एंड वी हैव ई इज इक्वल टू पी टी। और जस्ट आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। सो इट विल बी 60 सेकंड्स। सो 60 into 60, I think it will be 3600, और इस तरह का कोई आंसर इधर नहीं है। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन टू गो विद नन ऑफ दिस। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन में एक आधे ऐड कर देता होता हूँ जिसमें, और लिख देता होता हूँ, यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन है। तो बेसिकली इसका मकसद होता है कि 2 MCQs को मैं मर्ज अप कर रहा हूँ, या आपकी प्रैक्टिस हो सकती है कि हर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम क्वेश्चन को इतना लाइटली ले लेते हैं कि आंसर पे हम इतने फोकस होते हैं कि क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट हम सीख सा नहीं बाद पढ़ पाते। सो ये एक हर पेपर में कोई 1-2 क्वेश्चन होते हैं। सो इसमें मकसद ये कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। So range of projectile are equal for those angles whose sum is equal to 90 degree. So ये 2 एंगल्स है जिनके लिए सम 90 डिग्री है। सो ये आपका आंसर हो सकता है, इनफैक्ट यही आंसर है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिमेंशन जो क्वालिटी बताती है, रेंज लेंथ है, सो इट हैज टू बी लेंथ अपार्ट फ्रॉम के वो क्या है। डिमेंशन एनालिसिस ओनली डील विद क्वालिटी, एंड quality is here is of length. If momentum of a moving object is doubled, what happens to the kinetic energy? So this is a very famous formula. हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये देखा जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। वन कैन ट्राई इट्स डेरिवेशन। इट्स सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, सो दैट बिकम्स p स्क्वायर एंड देन 2m। सो यहाँ पे हमारा क्या काम है कि मोमेंटम को डबल कर दिया गया है और उसका स्क्वायर है। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। सो आंसर इज 4 टाइम्स। No, yes, 4 times. Okay.
एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स, ये भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहा है कि जब भी दो आपको ग्राफ दिए जाएं, कोई भी ग्राफ हो, यहाँ पे हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है, फोर्स आप वाई एक्सिस पे ले लें या एक्स एक्सिस पे ले लें, तो आप सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं, एक तो उनकी रेशो ले सकते हैं विच विल गिव यू द स्लोप, और एक आप एरिया अंडर द कर्व ले सकते हैं जो कि बेसिकली इन दोनों का मल्टीपल होगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, अपनी फिजिक्स की डिक्शनरी देखेंगे एफ डी किसके बराबर होता है, सो इट हैज टू बी इक्वल टू वर्क, वर्क नहीं है लेकिन हमें पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क और एनर्जी एक ही चीज के दो नाम है, अगर हम उसे ग्लोबली देखें सो एनर्जी विल बी द आंसर। अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसे, फॉर एग्जांपल एफ ओवर डी which is basically the slope here, this is the area, this is equal to this thing and this is the slope, so basically slope को m से show करते हैं mathematically, so f over d basically अगर हम देखें अपनी physics की dictionary, so I know कि it's equal to spring constant k is equal to f over x, so slope of this area, this force displacement graph is equal to spring constant. ओके, स्लोप का एक फॉर्मूला और भी होता है, अगर आपको यानी स्लोप से मुतल्लिक ही कोई ऐसी चीज दी जाए और वो सिर्फ एंगल दे दे, सो एम इज इक्वल होता है टेन थीटा, सो इफ यू हैव द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस बाय अ वेक्टर और समथिंग यू आर डूइंग, तो आप जस्ट टेन थीटा लें, जो आंसर आएगा वो उसकी स्लोप होगी। दिस इज आई थिंक इन एफएससी मैथमेटिक्स। ओके, slope of a force displacement graph gives us, we have discussed it above, it gives us basically spring constant which is not given, so it's none of these. सर yes फोर्स डेंसिटी भी तो हो सकता है नहीं? हाँ, ये इस पे हमने डिस्कस किया था फोर्स डेंसिटी हो सकता है, लेकिन ना ये एक ऑलरेडी एक फिजिकल टर्म अवेलेबल है और उसमें हम उसे यानी जस्ट टू टेक अदर इन दिस डिस्कशन, ये हमारी पहले डिस्कस इस पे हुई है, यानी जो सिंपल डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस बेसिकली नॉट डेंसिटी, इस मास डेंसिटी इन 3 डायमेंशन। जब आप डायमेंशन चेंज करते हैं, आप 1D में जाते हैं तो वॉल्यूम की जगह लेंथ आ जाती है, जब आप 2D में जाते हैं तो एरिया आ जाता है और 3D में जाते हैं वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह जब आप क्वांटिटी चेंज करते हैं मास डेंसिटी से लेट्स को चार्ज डेंसिटी, फोर्स डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर में है वो पर्टिकुलर पैरामीटर है, जैसे कि इस केस में फोर्स है। सो फोर्स डेंसिटी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फोर्स डेंसिटी अगर मैं 1D में लूं तो इसका फॉर्मूला यही बनेगा एफ ओवर डी, लेकिन अगर होपफुली ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे इन दिस केस, बेसिकली मैंने जिस लिहाज से दिया था, इस सर्टेन अराउंड फोर्स डेंसिटी द टर्म व्हिच इज यूजुअली कंसीडर्ड विद द 3D स्टफ, यानी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जाहिर बात है उसको हम फिजिक्स में अगर खुद फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं या उसको हम अपनी डायमेंशन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 1D में, सो शेजाद बिल्कुल इसका आंसर फोर्स डेंसिटी भी हो सकता है। सो होपफुली आपके पास इस तरह इतना उसको वो टेक्निकली नहीं लेके जाएगा, सो आई एम विद इट, फोर्स डेंसिटी हो सकता है कंसीडरिंग कि हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं डायमेंशन पे। ओके, लेकिन कंसीडरिंग के जो डिस्कशन के लिहाज से नन ऑफ दीज, यानी से हम स्प्रिंग कांस्टेंट रखेंगे जो एक यूजुअली नॉन फिजिक्स के लिहाज से हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, थैंक यू। Thanks for your discussion on that as well. Okay, so the minimum number of unequal vectors whose vector sum can be equal to 0. So unequal से मुराद है, ये हम सिंपल मैथमेटिकल रूल से भी चेक कर सकते हैं कि 3 नंबर बताएं बराबर नहीं होने चाहिए और उनका सम 0 आ जाए। सो हम 5 और -5 ले सकते हैं, लेकिन ये इक्वल है, सो इट हैज टू बी 7 + 5 - 12। सो द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर शुड बी 3, और जब हम इक्वल की बात करेंगे तो वो 2 हो जाएंगे, जैसे 5 and -5। सो द सेम रूल, सिंपल स्केलर एडिशन rule can apply in this case, not always but in this case. Okay, a force of 10 Newton act along x-axis, its component along y-axis will be, so इसमें 10 Newton acting along x-axis है, so y-axis पे उसकी कोई उस तरह नहीं है contribution, so it will be equal to 0.
the first digit drop is less than 5, the last digit retained is, कि अगर drop digit 5 से छोटा हो तो जो digit हम retain करेंगे वो unchanged होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is a easy one कि इसमें कोई भी 5 नहीं है, क्योंकि जब 5 होता है तो फिर पूरी confusion होती है. खैर वो कंफ्यूजन अब ओवरकम हो गई है. जो भी जो ये ऑडियो सुन रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन हुई है इस पे, थैंक्स टू शहजाद के उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि देयर इज अ अपडेट वर्जन ऑफ राउंडिंग ऑफ, और हमारी जो एफएससी की बुक 2021 है, एफएससी पार्ट 1 की, उसमें उसके अकॉर्डिंग वो रूल उसने जरूर हाईलाइट नहीं किया अपडेटेड वन, लेकिन आंसर उसने सेकंड एग्जांपल का उसी रूल के अकॉर्डिंग दिया हुआ. सो विच मेक प्रूव्स के जो अपडेटेड राउंड ऑफ मेथड है, या हमारी पहले बुक्स में शायद वो अपडेटेड नहीं था, तो वो बिल्कुल ठीक है. सो वो जरूर डिस्कशन ग्रुप में मौजूद है, प्रोबेबली शहजाद कैन शेयर इट अगेन. सो उसमें 5 जब आए तो हमने बड़े एहतियात से देखना है, और उसकी लॉजिक बिल्कुल बड़ी फिट है कि अगर आपके पास 100 डिजिट है तो क्या आप आखिर से शुरू होंगे? तो बिल्कुल आखिर से शुरू होंगे. अच्छा, पहला गिराएं, दूसरा इग्नोर करें, फिर तीसरा, चौथा, और आपने आना है सेकंड तक. तो 98 आपने क्या करना है? तो उसका आसान अलग है. अगर आपने सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आप जस्ट थर्ड देखें, अगर वो 5 से छोटा है नो चेंज, अगर 5 से बड़ा है डू चेंज, और अगर 5 के इक्वल है देन वी विल सी कि वहां पे 0 है, 1 है, और उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दें. सो टाइम सेविंग एंड गुड accordingly. Okay, resultant of two vectors 4 Newton and 3 Newton inclined at an angle of 180 degree. So we have 4 Newton and 3 Newton से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. एक हो जाएगा 16 फर्स्ट कंपोनेंट स्केयर, सेकंड कंपोनेंट स्केयर हो जाएगा 9, और मे बी जस्ट सिंपली अभी हमने मिनिमम के लिए देखा कि जब भी 180 डिग्री होगा तो आप सिंपल डायरेक्ट आर मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड. सो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड है 4, दूसरे की मैग्नीट्यूड है 3, सो द आंसर विल बी 1. सो इन वन स्टेप, वो भी आपकी जो सिंपल माइंड मैथमेटिक्स से आप इसका आंसर दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग कैलकुलेशन. एज अ रॉकेट मूव्स अपवर्ड्स एक्सेलरेशन, तो जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन 22. ओके, ये आई थिंक 4 मिनट्स के बाद बंद भी होगी, तो ट्राई के हम कितना करते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड विल बी, तो जब भी फ्री फॉल की बात हो तो आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ डिस्टेंस is s is equal to half gt square. In fact, it's a MCQs number 20. yes. Sir, MCQs number 20 repeat कीजिएगा. Why not 20? So basically ये इसका फॉर्मूला एक तो है ना, r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, और उसको सोल्व करें और आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर 180 डिग्री एंगल है तो आपके पास जो भी मैग्नीट्यूड आएगी वो मिनिमम आएगी. सो मिनिमम का फॉर्मूला है कि एक मैग्नीट्यूड में से दूसरे को माइनस कर दें. अगर 0 डिग्री आएगा तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी, तो उसमें भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं. आप अगर ये 0 डिग्री पे होते तो इसका आंसर 7 होना था. 180 डिग्री पे है तो इसका आंसर 1 है. अब बाकी जितने भी एंगल्स हैं इसका आंसर 1 और 7 के दरमियान होगा. वो जरी बात आप फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं. सो आई जस्ट सेड कि आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है जिससे आप अपना पेपर में टाइम बचा सकते हैं. एक क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे तो वो कहीं और आपके इस्तेमाल में आ जाएगा. ओके, सो ये इसके जरिए अगर आपने किसी लेट्स सपोज एस्टिमेट लगाना है किसी बिल्डिंग की हाइट का, तो आप जस्ट अपने मोबाइल का स्टॉप वॉच लें, वहां ऊपर से कोई पत्थर फेंकें, जब वो जमीन को हिट करे तो वो स्टॉप वॉच रोक लें. बस इट विल बी अ गुड एस्टिमेट, नॉट एन एग्जैक्ट थिंग. तो वो जो हाइट कवर होगी वो बेसिकली बिल्डिंग की हाइट होगी. तो इसमें आप जस्ट सॉल्व कर सकते हैं. आई डोंट नो क्या आंसर आएगा. 2 सेकंड 2 2 4 2 2 4 2 19.6 आई थिंक आ जाएगा. ओके, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी may increase or may decrease if the it depends upon projectile motion. इस तरह करके प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है.
The horizontal range and height of projectile equal at an angle of if the motion is studied in the second quadrant. So ये एक पॉइंट था कि वैसे तो हमें पता है ये आई थिंक 76 डिग्री है, ये हम सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक ये रखा गया था कि इसे 72nd क्वाड्रेंट में लेके जाना है। अब उसके लिए हम वेक्टर्स जब पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको दिया गया एंगल आप किसी और क्वाड्रेंट में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या हैं। तो उसके लिए रूल ये है कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसे एज इट इज रखें, सेकंड में है तो उसे 180 माइनस थीटा कर दें, थर्ड में है तो उसे 180 प्लस थीटा कर दें, और फोर्थ में है तो उसे 360 माइनस थीटा कर दें। इससे मुराद ये है कि अगर आप ये करेंगे तो आंसर सेम रहेगा फॉर ऑल द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस tan। फॉर एग्जांपल साइन 0 की जो वैल्यू है वही साइन 80 की है, साइन 10 की जो वैल्यू है वही साइन 170 की है। विद आई एम सेइंग रॉन्ग, ओके ठीक है। सो इन अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप 180 माइनस थीटा करें विच इज 180 माइनस 76, so it will be 104. So this will be the answer. The acceleration projectile at the highest point is सर yes. सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया था जब से अटेम्प्ट कर रहे थे तब भी, ये इसको काइंडली थोड़ा सा 24 हाँ जी जी 24 अच्छा, कैसे ये इसमें 104 आया है? जी ये अगर एंगल आपका थीटा है और अगर आप उसे सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आंसर है 76 डिग्री, ये न्यूमेरिकल है आपका एक्सरसाइज। मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करने का यानी ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये है कि उसे आपने 180 से सब्ट्रैक्ट करना। सो 180 में से जब आप 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 104। अगर कहा जाता है इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रांसफॉर्म कर दे तो फिर हमने 180 प्लस थीटा करना था एंड दैट विल बी 256। अगर कहा जाता है इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में बताएं तो फोर्थ